Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about suspension. Now we are going to solve exercise of chapter number 7. The first question is write proper terms or word against each statement. The first statement is a substance in a solution that is dissolved. So in this chapter we have learned that in a solution the substance that is dissolved is known as solute. The next statement is a solution in which no more solute is dissolved. So the solution in which no more solute is dissolved is known as saturated solution. The next statement is a substance that takes in or dissolve the other substances. So the substance in a solution that dissolve other substances is known as solvent. The last statement is a solution with less quantity of solute is known as dilute solution, as we know that a solution which have less quantity of solute is called dilute solution. The next question is circle the letter of the best answer. The first MCQ is a solution that contains a large amount of solute is best described as. So the solution which have large amount of solute is known as concentrated solution. So the option C is correct. The next MCQ is we make a solution when we mix. The option A is correct, salt and water, as we know that all other options are the examples of mixture, and for making solution we dissolve salt and water, in which salt act as solute and water act as solvent. The next MCQ is which of the following increases the solubility of a gas in a liquid? We know that the solubility of a gas increases with the decrease in temperature. So the option C is correct. MCQ number 4 is particles settle down in a, and we know that particles settle down in a suspension as solute and solvent are not completely mixed in suspension. So the option B is correct. The MCQ number 5 is which one is a universal solvent? And among all these options we know that water is a universal solvent. So the option D is correct. The third question is answer the following questions in detail. Our first question is describe the particle model of solution. The answer of this question is on page number 68. In the answer of this question you will write particle model of solution. And in this topic we have discussed about arrangement of particles in solid, liquid or gases, and we have also discussed about the intermolecular forces and the forces of attraction between these states of matter. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास जो पहला सवाल है वो है हर बयान के सामने मुनासिब इस्तिलाह या लफ्ज़ लिखें। फर्स्ट स्टेटमेंट है सॉल्यूशन में वो शय जो हल होती है, तो वो शय जो सॉल्यूशन में हल हो जाती है उसको कहते हैं सोल्यूट। अगली स्टेटमेंट है वो सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सोल्यूट हल नहीं होता। तो चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद सोल्यूट हल ना हो सके उसको सैरशुदा सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास वो शय जो दूसरी शय को अपने अंदर हल कर लेती है, तो वो है सॉल्वेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के अज्जा होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। वो शय जो हल हो जाती है वो सोल्यूट कहलाती है और वो शय जो दूसरी शय को अपने अंदर हल कर लेती है वो सॉल्वेंट कहलाती है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास सोल्यूट की कम मिकदार वाला सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कम मिकदार हो उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेहतरीन जवाब के ऑप्शन को दायरा लगाएं। फर्स्ट MCQ है वो सोल्यूशन जो सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार पर मुश्तमिल होकर बयान किया जाता है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार हो उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन जी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है हम सोल्यूशन बनाते हैं जब हम मिलाते हैं नमक और पानी। तो ऑप्शन अलीफ इसका करेक्ट है, क्योंकि बाकी तमाम ऑप्शन जो हैं वो मिक्सचर की मिसालें हैं। थर्ड MCQ है दर्ज झैल में से कौन एक गैस की माया में सोलिबिलिटी बढ़ाता है? तो हमें पता है कि गैस की माया में सोलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर कम करने से गैस की माया में सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन जी इसका करेक्ट है, टेम्परेचर कम करना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसके ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि सस्पेंशन
वो मिक्सचर है जिसके ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं। अगला हमारे पास MCQ है, इनमें से कौन एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो हम जानते हैं कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये बहुत सारी अशिया को अपने अंदर हल करके सोल्यूशन बनाने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इसका दाल ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दर्ज झैल सवालात के तफसील से जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन का पार्टिकल मॉडल बयान करें। इस सवाल का जवाब पेज नंबर 68 पर है। इस सवाल के जवाब में आप सोल्यूशन का पार्टिकल मॉडल लिखेंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ठोस, माया और गैस के अंदर पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट होती है। यानी ठोस के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं और आज़ादाना हरकत नहीं करते, जबकि माया में पार्टिकल ठोस की निस्बत एक दूसरे के साथ कम मजबूती से जुड़े होते हैं और हरकत कर सकते हैं। जबकि गैस में हमने पढ़ा था कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इनके दरमियान खाली जगह पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।